बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन की इस लेक्चर में बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम एंगुलर मोमेंटम को अंडरस्टैंड करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे, इसका लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप देखेंगे और फिर हम इसको एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क के साथ रिलेट करेंगे कि किस तरह टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आपस में रिलेटेड है। हम न्यूटन सेकेंड लॉ की तरह कि जहाँ पर हमने फोर्स को इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्रेस किया था, यहाँ पर टॉर्क को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्रेस करेंगे और फिर इनमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट भी करेंगे, इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी ये होगी कि मैं पहले एक पॉइंट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है डिफाइन करूँगा और उसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करेंगे और फिर हम उस पॉइंट पार्टिकल की तरह बहुत से पॉइंट पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनाते हैं, कोई रिजिड बॉडी बनाते हैं, तो फिर इनमें हम उसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये दो सिचुएशंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्राई की हुई हैं, हम बारी बारी इनके ऊपर आते हैं। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर दें। एंगुलर मोमेंटम की डिफिनीशन अगर की जाए तो इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड द लीनियर मोमेंटम। मोमेंट आर्म इस केस में तो सीधी सी बात है कि एक पॉइंट पार्टिकल है जो किसी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे, तो उसका मोमेंट आर्म क्या होगा, उसका जो पोजीशन वेक्टर उस ऑरिजिन से बनता है that is r and that is its moment arm, and then for this case the linear momentum is tangential to the circle. You know, whenever an object revolves around a circular path, it has a linear velocity always at any instant tangential to the circle. So in this case, if we are talking about the angular momentum, so we need linear momentum. So its linear momentum is in this direction. And if I now define the angular momentum, I can state that angular momentum L is a cross product of moment arm and the linear momentum. Angular momentum is an axial vector, just like we discussed the angular displacement, angular velocity, angular acceleration, and torque. So angular momentum is also an axial vector. Its direction is always along the axis of rotation. What is its physics? So as far as physics is concerned, it's just like the linear momentum, which was in case of translation motion, and we define it as the quantity of linear motion. So you can call the angular momentum as the quantity of rotational motion, the quantity of angular motion. And it has the same role in angular motions as the linear momentum has in linear motion. So it is very important thing, and this concept of angular momentum has revolutionized the field of science, especially in quantum mechanics. It has a very important role, and you would understand all these things in future if you need, but at this time we are talking about the angular momentum. So for a point particle that is revolving around some circular path, the angular momentum is just r cross p, and p, if we call this motion as uniform circular motion, so in case of circular motion, the expression can be only written as rp, because the angle is then 90 degree. Why 90 degree? Because this linear momentum is perpendicular to this r, the motion is circular, so we can write this as rp. So L is rp. Unit vector n
can be written here. This unit vector n is such that it is always perpendicular to this r. It is never radial, and I'm talking about vector r, and this is also perpendicular to that linear momentum. It is neither radial, it is nor tangential. It is axial along the axis of rotation. इसकी डायरेक्शन हमेशा along the axis of rotation होती है, ना ये रेडियल होता है, नहीं टेंजेंशियल होता है. तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आप बता सकते हैं सिंपली. And in this case, if the motion is along the plane of this whiteboard, then the angular momentum is can be represented by simply a dot that shows that it is out of that whiteboard. So I represent it with some normal n. And if the motion is clockwise, then it would be into that whiteboard. So it's just an axial vector. We discussed it already. So here is the mathematical form of angular momentum of a point particle that is revolving around some external point. So I expand it further. I put P equals mv here in this equation, and I get R times mv. So L is mvr. But as I'm talking about some angular quantity, so I do not need this linear velocity, and I change it to its angular counterpart omega by this expression. So I get m times r omega times r, and from here I get m r square omega. And for this point particle, mr square is just its inertia. So L equals I omega, and I is the inertia of some point particle revolving around some external axis in a circular path having radius r, as is the case. So here is the angular momentum of that point particle about some external axis. Now if you want to express it vectorially, you just put an arrow here, and you get L I omega. So it's an axial vector, we already discussed. And then अब अगर हम इस तरह के पॉइंट पार्टिकल्स मिलाकर एक रिजिड बॉडी बनाए, जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाया है, एक लट्टू है, घूमने वाला लट्टू, आपने लाजमी तौर पे बचपन में इसको यूज़ किया है. यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं और ये किसी पॉइंट के गिर्द घूमता है. तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अगर हम उसकी बात करें, तो मुझे ये फिगर ए थोड़ा सा मिटाना होगा. ठीक है. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये एक रिजिड बॉडी है और मुझे अब इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है. इसमें मसला सबसे ज़्यादा इस चीज़ का आता है कि इसका इनर्शिया कैसे मालूम हो जाए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो इस पूरी बॉडी की एक ही होगी, ओमेगा. लेकिन अगर मैं इसकी इनर्शिया की बात करूं तो ये किसी भी शेप का हो सकता है, इसलिए इसका इनर्शिया डिफरेंट होगा. तो इस केस में हम फिर क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी को जिस भी शेप का हो, चाहे वो बॉडी जिस भी शेप की हो,
हम उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बना लेते हैं और हर एक पार्टिकल को कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसका एक पार्टिकल लिया, एक ब्लॉक, उसका इस पार्टिकल की तरह जो अभी हमने ड्रा किया था, एक पार्टिकल उसमें मैंने चूज किया। अब वो पार्टिकल किसी एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ठीक। ये उसका आर है, इस पार्टिकल का आर मुझे मिला। इस पार्टिकल का मास लेट सपोज मैं कहता हूं m1 है। इसका मोमेंट ये किसी एक्सिस के साथ बंधा हुआ है, किस तरीके से, आर के जरिए। अब मैं कोई दूसरा पॉइंट इधर कोई चूज कर लेता हूं, यहां पे, और वो भी इसी एक्सिस के गिर्द किसी आर के जरिए बंधा हुआ है। अब m1 का आर मैं r1 उसको कहूं तो इसको मैं r2 कह दूं, ठीक है। इसको कोई मास 2 कह दूं, m2। फिर इस तरह और मैं पूरी बॉडी के जो है क्या बनाऊं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाऊं, और हर पॉइंट पार्टिकल के लिए मैं बिल्कुल इसी तरीके से इनर्शिया फाइंड करूं और फिर उस टोटल इनर्शिया को इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं। आई गेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी। And how can I do that? The total angular momentum for such bodies, for rigid bodies of irregular shape of any, अब ये मैं जनरल कोई एक्सप्रेशन इसके लिए लिख रहा हूँ, ये फिर किसी भी शेप का हो, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन इसके लिए ये होगा कि इसमें मुझे चूंकि पूरे सिस्टम का इनर्शिया फाइंड करना होगा, इसलिए ये इस तरह मैं करूँगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम उन सारे छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटा का सम होगा, ठीक है। और फिर मैं उनको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल n तक उनके नंबर्स रख लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 n तक गए हुए हैं। तो एंगुलर मोमेंटम टोटल जो होगा दैट वुड बी I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, एंड इस तरह In ओमेगा तक वो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा मैंने सब में एक जैसा इसलिए लिखा है कि पूरी एक रिजिड बॉडी है, उन पॉइंट पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैंने फिक्स्ड रखा हुआ है। उसको भी अगर आप ये समझते हैं कि वो भी मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो उन सब को मैं समेशन में लिख सकता हूँ, इन सारे I1 और I2 और I3 को, और ओमेगा चूँकि उन सब में कहाँ से एक स्टेप में फर्दर कर लेता हूँ। पहले मैं I1 प्लस I2 प्लस डैश 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 प्लस IN, ये इस तरह लिख लेता हूँ कि ओमेगा उनमें से बाहर निकाल लिया क्योंकि सब में एक जैसा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक इनर्शिया की जो है मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेता हूँ, जो मुझे मालूम है कि किसी पॉइंट पार्टिकल का इनर्शिया क्या होता है। और इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस mn rn स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया। इन सब में कॉमन क्या है, वो ओमेगा जो हमने लिखा था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ये समेशन है बहुत सारे इनर्शिया का। सो इसके लिए मैं कोई समेशन इंडेक्स लगा लेता हूँ, mi
RI² और समेशन इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, n तक गया हुआ है जितने भी मैंने उसके सेक्शन बनाए हो, एंड साथ में ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम टोटल जो होगा वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि पहले उस पूरी बॉडी के छोटे छोटे पॉइंट बना लेते हैं और फिर हर पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो है फाइंड कर लेते हैं और उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर रिजिड बॉडी है तो इसमें फिर हम ये तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो फिर हमें तो ये फिर बड़ा आसान होता है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। और ये एंगुलर मोमेंट और सारे वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं। बहरहाल वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम बिकॉज क्लॉकवाइज मोशन एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, सो दे आर वेक्टर्स बट इन द एंड this is vector actually, and the direction of this angular momentum is same as the direction of this angular velocity, and both are axial, both have direction normal to that axis of rotation. So जिस डायरेक्शन में ये बेंड होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी डायरेक्शन में हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। एंड यहाँ पर फिर मैं इन सब की जगह आई लिख सकता हूँ दैट इज इनर्शिया ऑफ दैट रिजिड बॉडी एंड साथ में ओमेगा। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स in a rigid body. And then from here you can see that this angular momentum is the product of inertia, rotational inertia, and the rotational velocity, angular velocity. So it's the product of these two things. And now we move to the relationship between torque and angular momentum. अच्छा, तो टार्क जो है, टार्क को अगर हम डिफाइन करें, आप ऑलरेडी जानते हैं टार्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, you know that. And once again, if I'm talking about some circular motion, then I can write only RF the magnitude of torque is RF. Sin 90 is 1 for circular motions. Now this equation 1 can be changed by substituting the definition of force from Newton's second law, and then it becomes R times ma. And what is A? A is m del V divided by del T. Here is the reference for this substitution, and then here is the reference for the other substitution. You already know all these things. And now this R and M both are constant for this particular case. We are talking about an object that is revolving
about some external point in a circular path having some radius and object has some mass. So both of them are constants. So हम इन दोनों को inside that change parameter लिख सकते हैं and we get mvr divided by delta t, and this mvr we know is equal to the angular momentum. So from here we can see that del L divided by del T equals torque. Torque जो है that is equal to change in angular moment. And just like force can change linear momentum, the torque can change angular momentum. And there are many examples in our daily life where you can see that the torque or the rotation effect can faster up the rotation or can slow it down. So torque is necessary to bring change in angular momentum of an object, and from this equation then we can state the law of conservation of angular momentum. And as I said that torque is necessary to bring change in angular momentum. So if somehow we manage to make torque zero, the angular momentum remains constant, and that is the law of conservation of angular momentum. So what is the law of conservation of angular momentum? Law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum के मुताबिक if the summation of all the torques acting on an object is zero, the total angular momentum of the object is constant. So if the summation of all the torques acting on an object is zero, the total angular momentum of the object is constant. The object may be a point particle that is revolving around some external axis, or it may be a system of particles. So in either case, torque is necessary to bring change in the angular momentum of that system. And then according to this equation we can say that if torque is zero, delta L divided by delta T is zero. It means that delta L is zero. And if delta L is zero, what does it mean? Angular momentum is same finally and initially. And we can now write it as angular momentum final equals angular momentum initial. And I call it some L, and that L is constant. And in that case, if angular momentum is constant, L equals I omega. If this angular momentum is constant, then it has very interesting implications. डियर स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है, या शायद आपने ख़ुद भी कभी ये ट्राई की हो,
तो वो अपनी हवा में अपनी बॉडी को एक ख़ास शेप में ले आता है जिससे वो रोटेट करने लगता है। और फिर आपने अगर इस तरह प्रैक्टिस नहीं की या किसी को नहीं देखा तो यकीनन आपने जिम्नास्टिक देखी होगी कि जिसमें एक एथलीट जब हवा में जंप लगाकर कलाबाजियाँ करता है तो बॉडी को एक ख़ास पोजीशन में ले आता है। तो बॉडी की पोजीशन चेंज करने से, उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से ऐसा क्या हो जाता है, इससे वेलोसिटी पे, घूमने की वेलोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसी एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। और किस तरह ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हुआ पहला अंडा और ये इसके साथ पड़ा दूसरा अंडा। ठीक है। इनकी शेप्स थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जाहिर है ये डिफरेंट मुर्गियों ने डाली। अब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रॉ एग है, कौन सा हार्ड बॉइल्ड एग है? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनिशियली दोनों की एंगुलर वेलोसिटी 0। जब इसके ऊपर मैं टार्क एग्जर्ट करता हूँ, यानी इसका एक मूवमेंट आर्म है जाहिर है, और इसके ऊपर ये इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है क्या, इसके ऊपर मैं टार्क एग्जर्ट करता हूँ तो इससे इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है। और जब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है तो पहले ये ओमेगा आई था, अब कोई ओमेगा फाइनल हो जाता है ओमेगा and I call it omega 1 because this is egg 1, and the angular velocity of this egg would be omega final, for this case would be omega 2 if I exert torque on this egg as well. बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर भी कोई टार्क लगाऊं तो उसका भी कोई जो है एंगुलर, उसकी भी कोई एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा 2। अब आप देख सकते हैं इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम जो था वो 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि ओमेगा आई 0 था, आई टाइम्स ओमेगा आई 1 फॉर दिस केस एंड I2 for this case is omega I, and in both the cases initial angular momentum is 0. But how about the final angular momentum? In this case the final angular momentum is I1 omega 1, and in this case it is I2 omega 2. So if I ask you a question now, that what is the change in the angular momentum of this and what is the change in angular momentum of this egg? It totally depends upon how much torque we exerted on it. अगर हमने दोनों पे एक जैसा टार्क एग्जर्ट किया है तो दोनों एंगुलर मोमेंटा आपस में बराबर होंगे, और अब हम ये कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2। कब? अगर LF इज इक्वल टू LF 1 के लिए जो था और 2 के लिए जो था, दोनों अगर सेम है तो फिर हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, दोनों का एक जैसा है, उनको L कहते हैं। I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 आपस में सेम होंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्लियरली आ सकती है कि
अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इनर्शिया इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, तो हम ये बता सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। अब कैसे मैं बता सकता हूँ? जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। और आप देख सकते हैं इनर्शिया किसका ज़्यादा है? इनर्शिया उस एक का ज़्यादा होगा जो कि बॉइल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मास किनारों की तरफ चला जाता है जब आप उसको रोटेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। इससे क्या हो जाता है? वो एक रिंग की तरह सा बन जाता है, यानी उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। जबकि अगर वो हार्ड बॉइल्ड है तो उसका मास एक्सल के करीब करीब है, इसलिए वो उसका आर कम होगा और नतीजतन उसका इनर्शिया भी कम होगा। सो चूंकि I1 इज लेस देन I2, ये एक टू, इसलिए ω1 इज ग्रेटर देन ω2। तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि वो अंडा जो ज़्यादा तेज़ी से घूमा वो बॉइल्ड था, और जो तेज़ी से नहीं घूमा वो रहा था, वो अंदर से कच्चा था। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आप किसी स्विमिंग पूल में जंप लगाने वाले उस बंदे को आप अगर देखें तो वो खुद को इसलिए बेंड कर देता है ताकि उसका मूवमेंट आर्म कम से कम हो जाए, इनर्शिया जो है वो कम हो जाए, और इनर्शिया कम होने से फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। शर्त वहाँ भी यही है कि फोर्स एक जितनी लगे, तो फोर्स तो उसने खुद लगाई होती है, टार्क तो उसने खुद दिया होता है, तो इसलिए बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। सिर्फ ये है कि इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे में। या अगर आप इस तरह करें कि रोटेटिंग डिस्क पे बैठ जाएं, रोटेटिंग डिस्क पे किसी जिम में, और अपने हाथ में वेट्स पकड़ें, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। जब आपके हाथ आपके करीब करीब होंगे तो आपको आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब आप हाथ फैलाएंगे आपका इनर्शिया बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। सो दिस एंगुलर मोमेंटम कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। दिस इज I ओमेगा। एंड आज के लिए इतना काफ़ी था। मज़ीद भी इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर आप किसी दिन अगर टाइम मिलता है तो मैं जायरो इफ़ेक्ट के ऊपर बात करूँगा कि किस तरह एंगुलर मोमेंटम जो है हमेशा टार्क को फॉलो करता है, एंड टार्क की डायरेक्शन जो होती है वही हमेशा एंगुलर मोमेंटम की होती है, और इसके इंतहाई इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ भी करते हैं। बहरहाल ये फिर किसी लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।